Is our self-esteem secure in the sovereign God that we worship? जिस महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उनमें जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं क्या सुरक्षित है? Many of us carry very low self-esteem. हम में से बहुत लोग जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत कम है, छोटे हैं, And we tend to feel insignificant within ourselves. और हम अपने अंदर सोचते हैं कि हम बहुत कम है, छोटे हैं। My brothers and my sisters, that mindset must change. मेरे भाई मेरी बहनों, उस मनोस्था को बदलनी होगी। It's not about who you are, it's all about whose you are. और देखिए आप कौन है ये नहीं, लेकिन आप किसके हैं ये महत्वपूर्ण है। In the Bible, there are many examples of men who felt exactly the same way that most of us are feeling today. पवित्र शास्त्र में ऐसे पुरुषों का उल्लेख है, उदाहरण है, जिनको ऐसे ही लगा था जैसे हमको आज लग रहा है। We all know the mighty man called Gideon in the Old Testament. हम सभी सामर्थ्यशील पुरुष गिदोन को जानते हैं पुराने नियम में। This Gideon routed the army of Midianites just with 300 people. 300 पुरुषों को लेकर गिदोन मिद्यानी सेना पर हावी हो गए, विजयी उन्होंने प्राप्त की। When the angel of God was in conversation with him, जब स्वर्गदूत गिदोन से बात कर रहे थे, Gideon opened up and showed his low self-esteem. और गिदोन ने खुलासा किया और दर्शाया कि मैं कम हूँ, छोटा हूँ। In Judges chapter 6 verse 15 we can see न्यायों की किताब के 6 अध्याय के 15वें वाक्य में हम देखते हैं Gideon says that our family, our clan is the least in the entire Manasseh. गिदोन कहते हैं कि हमारा परिवार जो है मनासे में बहुत ही छोटा है, And I am the least in the family. कुल बहुत ही छोटा है और मैं मेरे परिवार में सबसे छोटा हूँ। So he saw himself as somebody who's extremely very insignificant. देखिए कैसे उसने अपने आप को देखा कि वो कम है, But God picked him up, लेकिन परमेश्वर ने गिदोन को चुना, encouraged him, प्रोत्साहित किया, edified him, बनाया, changed his mindset उनके मनोस्था को बदल दिया before he put him on the assignment. जिम्मेदारी को देने से पहले। Similarly, we can see the story of Moses, देखिए उसी प्रकार से हम मूसा की कहानी को भी देखते the हैं, Old Testament's Messiah, पुराने नियम के मसीहा, truly a tall figure for that matter. और बहुत ही ऊंची हस्ती। He too carried a very low self-esteem. वो भी अपने आप को लेकर अपने आप के बारे में बहुत ही कम सोचते थे। After living in the land of Midian for 40 good years, मिडियन देश में 40 साल रहने के बाद, after being a shepherd over sheep, और 40 साल चरवाहा रहने के बाद, this man almost became a sheep himself. वो खुद एक भेड़ बन गए। He did not think anything worthwhile can come out of him. उन्होंने सोचा नहीं कि उनके जीवन से कुछ अच्छा निकल ही सकता है। When God granted him a great encounter through the burning bush that was not consumed, जब परमेश्वर ने उनके साथ में भेंट की, वो जलती हुई झाड़ी के जरिए, जो झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी, and opened up and gave him a great vision, और दृष्टि को खोलकर जो है उनको एक बड़ा दर्शन दिया, you can see how Moses opened up and showed his low esteem to God. और हम देखते हैं कि कैसे मूसा जो है वो परमेश्वर को दर्शाते हैं कि वो कम है, वो कुछ नहीं के बराबर है। Let's open our Bibles to Exodus chapter 3 verse 10 to 12. Let's look at it. हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, निर्गमन की किताब 3 अध्याय 10वें वाक्य से 12वें वाक्य तक I'm going to पढ़ेंगे। read for us from the NKJ version. It says, "Come now, therefore, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." Verse 11, "But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt?" Verse 12, "So he said, I will certainly be with you." That's God saying here, "I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain." And then further down he says, when Moses said to God, "Indeed I am, when I come to the children of Israel and say to them, the God your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them?" Verse 14, "And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you." और मैं 10वें वाक्य से 14वें वाक्य तक पढ़ने का प्रयास करती हूँ। "इसलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल के ले आऊँ?"
उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुका तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Here God is giving a great assignment into the hand of Moses. यहाँ पे परमेश्वर मूसा के हाथों में एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। In verse 11, Moses questions God. 11वें वाक्य में हम देखते हैं मूसा परमेश्वर से प्रश्न पूछते He हैं। says, "Who am I?" मैं कौन हूँ परमेश्वर? When he asked this question, this wrong question, when he asked him, जब ये प्रश्न को मूसा ने पूछा he was bringing to fore his fears and insecurities. तो वो अपने भय को परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहा था। In verse 14, we can see how God answered him. और 14वें वाक्य में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को जवाब God दिया। said, "I am who I am." मैं हूँ सो हूँ। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, God was saying, "My name is enough." परमेश्वर ये कह रहे थे कि मेरा नाम काफी है। Even today, the same God is saying to you, His name is enough. आज भी वही परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, उनका नाम काफी है। His name calms every fears of you. और देखिए उनका नाम हर एक भय को शांत कर देता है। His name will answer every prayer of you. और देखिए उनका नाम आपकी प्रार्थनाओं को जवाब देगा। His name will give, rather win battles for you. उनका नाम आपकी ओर से युद्धों को जीतेगा। At the mention of His name, things happen in heaven, things happen on earth, things happen on earth beneath. उनके नाम बोले जाने से स्वर्गों में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे चीजें होने लग जाती In है। His name, that your sins are vindicated. देखिए उनके नाम में आपके पापों को क्षमा है। And in His name, your authority is और validated. देखिए उनके नाम में ही आप अधिकारी बन जाते हैं। You receive your power in that name. उस नाम में, उनके नाम में आपको सामर्थ्य मिल जाता है। My brothers and my sisters, when you attach yourself to that great name, और देखिए जब आप अपने आप को उस महान नाम के साथ में जोड़ देते हैं, when you change that mindset of low esteem to your esteem in God, जब आप अपनी मनोस्था को बदल देते हैं और आप जब ये जान लेते हैं कि परमेश्वर में आप कोई है, the entire game changes. तो पूरा गेम बदल जाता है। That is how Moses went out. और देखिए ऐसे ही मूसा बाहर गए। That is how Moses brought the children of Israel out of Egypt. और देखिए इसी तरह से मूसा ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला। There is no man who saw as many miracles as Moses saw in the Old Testament. पुराने नियम में जिस रीति से मूसा ने आश्चर्यजनक कामों को देखा था, ऐसे किसी ने नहीं देखा था। No one left such a strong, indelible mark on the books as Moses left. और मूसा ने जैसे छाप छोड़ा है, वैसे किसी ने नहीं छोड़ा है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, you are that Moses in the making. देखिए आप वो मूसा है जो बन रहे हैं। You are that Gideon in the making. आप वो गिदोन है जो बन रहे हैं। The Lord wants you to change your mindset. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी मनोस्था को बदल दीजिएगा। Find your identity in Him, not in who you are. आप कौन है उसमें आपकी पहचान नहीं है, लेकिन परमेश्वर में आप अपनी पहचान को समझ लीजिएगा। Let go of the identity that you have of yourself. और आप में आपकी जो पहचान है उसको जाने दीजिएगा। Find that new identity in God Almighty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर में अपनी पहचान को समझ लीजिएगा। Then see how the success that is eluding you will become a doormat to you. फिर देखिए क्या कैसे सफलता आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी।
My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी with बहनों, these great thoughts in mind, ये महान विचारों के साथ अपने मन में रखते हुए with great courage, साहस के साथ I want you to go out into the day. आप दिन में जाइएगा। As you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं, victory shall be a portion. जय आपका भाग होगा। The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम He करते wants हैं, to encourage वो you. आपको प्रोत्साहित करना चाहते He हैं, wants to build you. वो आपको बनाना He चाहते हैं। wants to express His love at every available opportunity. हर एक मौके पर वो अपने प्रेम को आपके प्रति दर्शाना चाहते हैं। You find your identity in Him. आप अपनी पहचान उनमें पा लीजिएगा। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You have an रखे। awesome day. आपका अद्भुत दिन जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।